Assalamu alaikum to my respected teachers, colleagues and students. I am Dr. Sidra Kadir, consultant hematologist at Diagnostic and Research Laboratory LUMS. Today the topic of presentation is diagnostic journey, that is identifying bleeding disorders. Okay, these are my objectives. So introduction, bleeding disorders are very common disorders in our populations because of the consanguinity cousin marriages. And as we know, bleeding disorder can cause life-threatening bleeding, like they can cause shock or cardiac arrest. Von Willebrand disease is the most frequent bleeding disorder in our females. So first of all, we all should know the pathophysiology. Whenever injury occurs, three mechanisms in the body are activated. Number one, vasoconstriction, vessel का constrict हो जाना. Number second, platelet का plug बनाना, that is followed by coagulation plug, clotting factors का plug बनाना. These all three mechanisms are helping in preventing the bleeding. So bleeding disorders are widely classified into platelet disorders, clotting factor disorders, and other vascular disorders and fibrinolytics. But we mainly concern with the platelet and clotting factor disorders. So platelet disorders are divided into quantitative and qualitative. Quantitative means platelets का कम हो जाना. Normal is 150 to 450 lakh. तो 150 से कम अगर हो जाते हैं, that we call it thrombocytopenia. And other disorders are qualitative. Qualitative means platelets are present but their function is defective. We will call them qualitative defects. Further, they are inherited and acquired. Inherited means the patients will present at early stage of life, and these diseases can run in a families. And acquired का मतलब है कि they can occur at any age, ठीक है, and families में ज़रूरी नहीं है कि कोई family history हो. So thrombocytopenia, जब platelets 1,50,000 से कम हो जाए, we call it thrombocytopenia. It is further divided into mild. Mild means 100 to 150 platelets. Moderate, we can call it when platelets are from 50 to 100, and severe thrombocytopenia when platelets are less than 50. So inherited कुछ causes हैं thrombocytopenia के, जैसे बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम है जिसको हम BSS कहते हैं. वॉन विलिब्रेंड की एक टाइप होती है, टाइप 2B, that can present with thrombocytopenia, and other congenital thrombocytopenia जैसे विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम है, ए मेगाकैरियोसिटिक thrombocytopenia. ये inherited है जो platelets को कम करते हैं. Acquired causes, they can be due to immune and non-immune. Immune means कुछ antibodies हैं जो break down कर रही हैं peripheral blood में platelets को. That can be due to viral infections like hepatitis B, C, HIV, autoimmune disorders. They can cause destruction of platelets in peripheral blood. Major infections, malaria and dengue. ठीक है, तो हमें हमेशा acquired causes को rule out करना चाहिए in case of thrombocytopenia. जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, which are very common in our population. Non-immune जो causes होते हैं जिसमें DIC आ जाता है, hemolytic uremic syndrome आ जाता है, metastatic disease है, leukemias है. Now quality कब जो है ख़राब होती है प्लेटलेट्स की? देर आर कॉजेज़ लाइक इनहेरिटेड, जिसमें बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम में क्वांटिटी भी कम होती है एंड क्वालिटी भी ख़राब होती है प्लेटलेट्स की. इसके अलावा ग्लैंसमैन थ्रोम्बोस्थेमिया है जिसको हम अमूमन GT बोल रहे होते हैं, तो उसमें क्वालिटी ख़राब होती है प्लेटलेट्स की. अदर डिसऑर्डर्स लाइक स्टोरेज पूल डिसऑर्डर्स. Acquired qualitative defects like due to drugs.
मेनली ड्रग्स ले रहे होते हैं, एस्पिरिन ले रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, ठीक है, और पेन किलर्स ले रहे होते हैं, स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं, तो दे कैन कॉज डिफेक्टिव फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स. Now other broad जो होते हैं disorders, they are clotting factor disorders. They are mainly inherited and they are factor 8 deficiency जिसको हम हीमोफीलिया A कहते हैं, factor 9 deficiency हो सकती है जिसको हम हीमोफीलिया B कहते हैं. वॉन विलियन डिजीज इज़ वेरी कॉमन जो फीमेल्स में भी हो सकती है और मेल्स में भी हो सकती है. अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो बाहर तो रेयर है बट विच आर वेरी कॉमन इन आवर पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ द कजन मैरिजेस एंड लैक ऑफ अवेयरनेस among the families. Acquired clotting factors जो हैं वो लिवर डिजीज़ की वजह से हो सकते हैं, विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई मैसिव ट्रांसफ्यूजन है उस वजह से ब्लीड कर सकता है ड्यू टू dilution effect of clotting factors. Now how to diagnose or approach a patient of bleeding disorder. So I want to discuss the common presentations by which patient can present. If patient is having a platelet disorder, usually mucosal bleed के साथ आते हैं patients, जैसे कि नाक से खून आना, ठीक है, हेमिचूरिया होना, ठीक है, गम ब्लीड होना, जब चोट लगे तो ज़्यादा खून बहना, देर से खून बंद होना, तो ये सारी जो है प्रेजेंटेशन हो सकती है इन केस ऑफ प्लेटलेट डिसऑर्डर्स. मेनोरेजिया, वेरी कॉमन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल ब्लीड ज़्यादा होना, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को 7 दिन से ज़्यादा पीरियड्स हो, ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को एनीमिया हो, इतना ब्लड लॉस हो रहा है. तीसरा, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हो, देन वी विल लेबल के हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड है. नाउ अदर प्रेजेंटेशन क्लॉटिंग फैक्टर डिफेक्ट्स जो जॉइंट ब्लीड्स के साथ मोस्टली बच्चे पेशेंट्स आते हैं. नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, मेन आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनको अफेक्ट कर सकती है. रेयर क्लॉटिंग फैक्टर जैसे ए फाइब्रिनोजेनिया है, फाइब्रिनोजन का कम होना या फैक्टर 13 का डेफिशिएंसी और डिफेक्ट होना, दे कैन प्रेजेंट विद अ सीएनएस ब्लीड और अम्बलाइकल स्टम्प ब्लीडिंग, नाक से खून आना बच्चों में अर्ली प्रेजेंटेशंस होती है इन दोनों क्लॉटिंग फैक्टर्स की. अगर वुमेन डिसफाइब्रिनोजेनिया की है तो दे कैन प्रेजेंट विद अबॉर्शंस और मिसकैरेजेस. फैक्टर 11 डेफिशिएंसी अगर पेशेंट पोस्ट ओरल सर्जरी कोई डेंटल सर्जरी करवाई है उसके बाद प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साथ आया है, सो वी कैन सस्पेक्ट फैक्टर 11 डेफिशिएंसी. So this is a coagulation diagnostic research laboratory coagulation questionnaire. ये हम पेशेंट हर पेशेंट से पूछते हैं जिसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेन आ जाती है, फिर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, ड्रग हिस्ट्री पूछते हैं. तो ये क्वेश्चनेयर सारे क्वेश्चंस जो हैं हिस्ट्री रिलेटेड फुलफिल करता है जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं. दूसरा एक एवेल्युएशन का एक स्कोर होता है, डैट इज़ बैट स्कोर ब्लीडिंग असेसमेंट टूल. इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं. अगर पेशेंट को एपिक्स्टेसिस है, नाक से खून आ रहा है, तो ये हम क्वेश्चंस पूछते हैं. दीज आर द क्वेश्चन एंड स्कोर देम फ्रॉम 0 to 4. और अगर एडल्ट मेल है उसका अगर स्कोर 4 या 4 से ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि मे बी ही हैज़ अंडरलाइन ब्लीडिंग डिसऑर्डर. अगर फीमेल है उसका स्कोर अगर 5 या 5 से ज़्यादा आ जाता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं एबनॉर्मल. और अगर बच्चे हैं उसमें 3 से ज़्यादा स्कोर आता है तो इट मीन्स पेशेंट कैन हैव अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड फर्दर टेस्टिंग शुड बी डन इन ऑर्डर टू रूल आउट द अंडरलाइन कॉज. सो दिस इज़ अ अप्रोच. जब भी पेशेंट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट कम से आता है तो हम हमेशा सेकेंड स्टेप जो होता है टू सी अ पेरिफेरल फिल्म, क्योंकि कुछ कॉजेस होते हैं सूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के, दैट इज़ अ फॉल्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ड्यू टू इन विट्रो कॉजेस. बॉडी के बाहर कुछ कॉजेस हैं जैसे ट्यूब में ईडीटी होता है और वो क्या करता है, क्लम्पिंग कर देता है प्लेटलेट्स की और हम समझते हैं कि पेशेंट के प्लेटलेट्स कम है. और जब हम पेरिफेरल फिल्म रिव्यू करते हैं तो उसमें प्लेटलेट क्लम्प्स पड़े होते हैं. तो आफ्टर रूलिंग आउट द फॉल्स
और सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, देन हम ट्रू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के कॉजेज़ को रूल आउट करते हैं। जैसे कि अगर डेंगू सस्पेक्ट करें, पेशेंट फीवर के साथ आया है, तो उसमें हमें एटिपिकल लिम्फोसाइट्स मिलेंगे और प्लेटलेट्स लो मिलेंगे, तो हम आगे डेंगू की सीरोलॉजी एडवाइस कर सकते हैं। मलेरिया मिल सकता है पेरिफेरल फिल्म में, कोई एबनॉर्मल ब्लास्ट सेल मिल सकता है तो ल्यूकीमिया सस्पेक्ट कर सकते हैं, कोई FRBC मिला है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं दिस कैन बी ड्यू टू DIC और TTP-HUS इन प्रेग्नेंट फीमेल्स और नॉन प्रेग्नेंट। और अगर आफ्टर रूलिंग आउट अक्वायर्ड कॉजेज़ अगर पेशेंट को ब्लीड है तो हम कंजेनाइटल कॉजेज़ की इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, जैसे प्लेटलेट के फंक्शन को चेक करते हैं थ्रू प्लेटलेट एग्रीगेशन स्टडीज़ एंड देन जीन म्यूटेशन एनालिसिस फर्दर कंफर्मेशन के लिए। नाउ क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम किस तरह से करते हैं, हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जैसे कि PT, APTT, थ्रोम्बिन टाइम, फाइब्रिनोजन, इनके थ्रू अगर आइसोलेटेड PT प्रोलॉन्ग है तो इट कैन इंडिकेट के फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी है और इसके कॉजेज़ इनहेरिट भी हो सकते हैं, अक्वायर्ड भी हो सकते हैं। अगर आइसोलेटेड APTT प्रोलॉन्ग है एंड PT इज़ नॉर्मल, वी कैन सस्पेक्ट फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, फैक्टर 9, वॉन विलियन फैक्टर, फैक्टर 11 एंड 12। अगर PT एंड APTT दोनों प्रोलॉन्ग है तो वी कैन सस्पेक्ट कॉमन पाथवे जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 1, 2, 5, 10, विटामिन K की डेफिशिएंसी हो सकती है, लिवर डिजीज़ हो सकता है पेशेंट को। और अगर पेशेंट लैंड विथ ब्लीडिंग एंड ऑल द स्क्रीनिंग टेस्ट दैट इज CBC, प्लेटलेट काउंट, PT, APTT all are normal, we can suspect factor 13 deficiency. So these are all the tests which we offer in our lab, diagnostic research lab. If screening करवानी है, we have a CBC, morphology of the peripheral film, PT, APTT, fibrinogen. अगर हीमोफीलिया का करवाना है workup, so we have a screening test as well as confirmatory tests that are factor SA. अगर 8 की deficiency हम suspect करें तो हम factor 8 करवाते हैं, अगर 9 की deficiency suspect करें तो 9 और VWF की deficiency, so we can do von Willebrand factor antigen, Rykov and factor 8. Thrombophilia, in thrombophilia we are doing lupus, DIC to rule out DIC, we can have a CBC, peripheral film, all the screening tests, D-dimer, fibrinogen. So future plans of us to start other factors like antithrombin 3, protein C, S, factor 5, lead mutation, platelet aggregation studies, factor 13, SA. Thank you for your attention. Thank you.